Hello students. Today's our topic is Venn diagram. So one mathematician, John Venn, has introduced this Venn diagram. John Venn. So from his name, the name is given as Venn diagram. So what is this Venn diagram? Venn diagram. So Venn diagram is a pictorial representation of set. The representation of set. Pictorial representation of set is known as Venn diagram. Done? So in our Venn diagram, our universal set will represent our universal set by using rectangle. Pictorial representation of set in which universal set is represented by rectangle and remaining subset of this universal set are represented by closed curve. We have to use closed curve. You have studied closed curve and open curve in standard 8. So generally as a closed curve we are using circle. Circles are used to represent subset of the universal set. For example, let us now consider one universal set U, and the elements of U are 1, 2, 3 up to 10. Done? These are the elements of universal set U. And also we are given one set A. The elements of set A are, for example, 6, 7, 8. These are the given two sets, universal set and one set A. And if you want to draw the Venn diagram for this given two sets, how can we draw? So here we are given, we have to represent universal set by one rectangle and the subset of that universal set by some closed curve. So here you have to draw one rectangle. So this is one rectangle. This is our universal set U. And all the elements of this universal set that you have to write in this rectangle. Done? So the elements are, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So these are the elements of universal set U. So this rectangle represents universal set U. Now one subset of this universal set U is given and the elements of that A are 6, 7, 8. A is the subset of U, means all the elements of this set A are the elements of this universal set U. Yes, 6, 7, 8 are the elements of set A, as well as these 6, 7, 8 are the elements of this universal set U. That means ये जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है 6, 7, 8 वही वही एलिमेंट हमारे सेट ए के भी एलिमेंट है. So that subset is represented by closed curve, and that normally we are using circles as a closed curve. So to represent this set A in our Venn diagram, what you have to do? We have to draw one circle. Done? And elements of set A are 6, 7, 8. So these 6, 7, 8 are our element. So you have to draw one circle. Done? So this will represent set A. So set A is the subset of this universal set U. So this is known as Venn diagram of the given set. Let us now consider another example. Suppose we are given one universal set U and the elements of U are A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Universal set U and its elements are A, B, C, D, E and F. And the subsets are given. Suppose set A, elements of A are C, D and E. C, D and E. And another one subset is B and the elements are E and F. Now we have to draw Venn diagram for these two given sets A and B. So first you have to draw one universal set. So this is our universal set U. इसके कॉर्नर पर आपको ऐसे U लिखना है. Then you have to represent the elements. So here the elements of U are A, B, C, D, E, F, and
two subsets are there, A and B. The elements of A are C, D, and E, and elements of B are E and F. So here E is the common element between A and B, and E is the also element of E. तो ऐसे आपको सेट को क्या लिखना है? Suppose we are writing the elements like this. Suppose this is A, B, C, D, E, and F. So A, B, C, D, E, F. These are the elements of universal set U. Now we have to represent subset. Subset A having the elements C, D, and E. That C, D, and E are the elements of set A. So representing that set A as a closed curve, writing this is as a set A. Now another subset is a set with the element E and E and F. So E and F, these two elements are there. So you have to draw one another closed curve, which is circle. So this is set B. So in set A, in the area of set A, three elements are there: C, D, and E. So three elements of A are C, D, and E. This closed curve of B represent two elements E and F. So elements of B are E and F. And this rectangle represents our universal set, and all the elements are A, B, C, D, E, and F are the elements of U. So this is known as pictorial representation of any given sets. This is known as Venn diagram. Done? So this is one subset, and this closed curve are the subset of this universal set U. For example, one more example. Suppose we are taking U as a set of all people, set of all people of India, and the subset of that set A is set of all people of Gujarat. Now represent these two sets in a Venn diagram. तो अभी तो set of what is our universal set? That is set of all people of India. तो ऐसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट लिखेंगे, है ना. 130 करोड़ नाम यहाँ पर लिखना है, पॉसिबल है ना. तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट दिया है तो आपको उसके एलिमेंट यहाँ पर इंडिकेट करना ही है. अगर वो इनफाइनाइट सेट है या फिर फाइनाइट सेट लेकिन बहुत सारे सेट है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ आपको इसका एरिया कंसिडर करना है. तो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट यू विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. और उसका एक सबसेट क्या है, गुजरात, है ना. गुजरात, सेट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ गुजरात इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. हम गुजरात वाले इंडिया तो कहे ही, तो सबसेट होगा पार्ट. क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक ऐसे सबसेट ड्रॉ करेंगे, उसको बोल देंगे ए. So this A represent set of all the people of Gujarat. This U represent set of all the people of India. So this is Venn diagram. Clear? Now next topic is, student समझ में आ रहा है? Okay, very good. चलो next, रुना, very good. कैसे हो? हमारी पुरानी स्टूडेंट. अच्छा लग रहा है, 11 साइंस में सब आ गए, है ना. सब छोटे छोटे थे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था संस्कार भारती में. ऑपरेशन ऑन सेट्स. our next important topic is operations on a set, है ना. ऑपरेशंस तो हमने बहुत सारे किए हैं, है ना. वो मेडिकल वाले नहीं, वो जो रियल नंबर्स पर करते हैं ना, वो रियल नंबर्स पर हम करते थे अलजेब्रा. ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे शायद. अल्जेब्रिक ऑपरेशंस कौन से थे? एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, है ना. ये सब हम रियल नंबर पर अल्जेब्रिक ऑपरेशंस करते थे, है ना. अभी यहाँ पर भी हमें ऑपरेशन ही करना है, लेकिन वो सब ऑपरेशंस कहाँ पर करने हैं? सेट पर करने हैं. ठीक है. तो ऐसे कितने ऑपरेशंस होते हैं वो स्टडी करना है. सो आवर फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट इज यूनियन ऑन सेट, नॉट ऑनियन. यूनियन ऑन सेट्स, यूनियन ऑपरेशन, है ना. तो अभी मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि यूनियन क्या होता है. सो लेट ए एंड बी
be the two sets, let A and B be two sets, then union of union of set A and set B. The union of set A and set B is the set. दो सेट का यूनियन एक सेट ही होगा. The union of set A and set B is the set of all the elements. Set of all the elements. Set of all the elements of set A and all the elements of set B. All the elements of set B. सेट ए और सेट बी के दोनों ऑल द एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं. और क्या करना है? कॉमन एलिमेंट्स, टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन एट वंस. है ना, डेफिनेशन सिर्फ लिखने के लिए लिखी है, आपको ये नहीं रखना है, सिर्फ समझना है. देखो, व्हाट इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स? सो लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज वन सेट of all the elements of set A and all the elements of set B taking common elements at a once. तो ये आपको डेफिनेशन शायद समझ में नहीं आएगा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, सो लेट अस नाउ कंसीडर दिस डेफिनेशन बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स. So consider set A and set B are given. We are talking about two sets. So for example, set A is given. A and B are two given sets. So set A is 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. And set B as a 6, 8, 6, 8, 10, 12. Done. So A and B are two given sets. Then union of two sets. अभी इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. A यूनियन का U, A यूनियन B, है ना. इसको रीड करेंगे A यूनियन B. द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is given by A union B. So what is the definition? The union of two sets is the set. This is also one set. है ना, दो नंबर का एडिशन करते हैं, दो रियल नंबर का एडिशन करेंगे तो हमें रियल नंबर मिलेगा. सो सिमिलरली द यूनियन ऑफ टू सेट्स विल बी अ सेट. So union of two set will be a set which consists of all the elements of A and all the elements of B taking common element once. देखो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 and 6, 8, 10, 12 सब एलिमेंट लेने हैं, लेकिन ये 6 और 8 कॉमन है तो उसको हमें एक ही बार कंसिडर करना है. सो 2, 4, 6, 8. अगेन 6, 8 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट रिपीट होंगे और सेट में एलिमेंट रिपीटेशन अलाउ नहीं है. सो 2, 4, 6, 8. अगेन 6, 8, 10, 12. So this is the set of all the elements of set A and set B. So this is known as union of set A and set B. Clear? ये समझ में आ गया? रुना, कोई आंसर देगा मुझे? है ना, आंसर देते रहना है तो मुझे लगेगा कि कोई सामने बैठा है. वेरी गुड. नाउ सेट A. One more example. Suppose we are given set A. Elements are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. And set B is equal to A, I and U. Suppose these given two sets are there. Again, we have to define the union of these two sets. So what is the definition? The union of set A and set B is the set. Which set? A union B is the set of all the elements of set A and all the elements of set B taking common elements at once. Common element है उसको आपको एक ही टाइम लेना है. तो यहाँ पर देखो common element A आ गया. Yes, very good रुना. I आ गया और U आ गया. तो हमें मिलेगा A, E, I, O and U. Done? A, E, I, O, U. Ready? Now one more example. यूनियन कैसे करना है तो समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, है ना. इसको इंटरप्रेट भी करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ. तो उसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज सेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल, है ना. फुटबॉल प्लेयर का हम एक सेट बनाते हैं. हमारे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसका हम एक सेट बनाते हैं
कि जो फुटबॉल प्लेयर है। वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि वॉलीबॉल ही खेलते रहते थे, लेकिन फुटबॉल प्लेयर भी देखते हैं। राम, गीता एंड अकबर. So these are the three students. We are the, or we can say who are the football player. Set of football player, राम, गीता एंड अकबर पूरे दिन फुटबॉल खेलते रहते हैं. एंड सेट ऑफ another students which are cricketer. Suppose our cricketer are गीता, श्याम, और एक लेते हैं रीटा, है ना. These are the cricket player. So if you are taking X union Y, so what is X union Y? So X union Y will be the set which gives the set of students. Set of students who are football player and cricket player. That means फुटबॉल भी खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं, उसका पूरा सेट मिलेगा. तो क्या मिलेगा? तो राम, गीता, अकबर, गीता रिपीट, श्याम एंड रीटा. टोटल 5 elements are there. So it's a Ram, Gita, Akbar, Syam and Rita. This is our union. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर और बोथ. क्या इसका मीनिंग हुआ? दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर और बोथ, है ना. क्योंकि ये गीता हमारी, देखो ये हमारी गीता इस सेट में आ गई, है ना. गीता, तो गीता फुटबॉल प्लेयर भी है और क्रिकेट प्लेयर भी है. और ये राम आ गया तो वो तो सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, और ये रीटा आ गई वो तो सिर्फ क्रिकेट खेलती है. तो हमें यूनियन में क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग फुटबॉल और क्रिकेट और बोथ. या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर दोनों प्लेयर हैं. तो हमें मिलेगा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. व्हाट वी आर गेटिंग? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. डन. सो ये हो गया इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. आपको और कंसिडर करना है, आपको दोनों सेट के हर एक एलिमेंट कंसिडर करना है. Now we discuss how can we represent mathematically. Mathematical representation. ये यूनियन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, है ना. ये तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लेके आंसर दे दिया, लेकिन सपोज हमें सेट ए और बी को मैथमेटिकली लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? सो ए यूनियन बी, we are writing the A union B in terms of set builder form. So here we are defining all the elements X where X belongs to A or X belongs to B. देखो A और B का यूनियन लेना है. So for that we are considering all the elements of X. कैसे एलिमेंट? X belongs to A, या तो हमारा X A में होना चाहिए या तो फिर वो B में होना चाहिए. X belongs to A और X belongs to B. So we will get A union B. Clear? इसका वेन डायग्राम. What is the Venn diagram of this union? For example, we are getting union of two sets A and B. So Venn diagram के लिए ऐसे हम एक प्लाज्मा टेलीविजन ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, और उसके अंदर ऐसे एक क्लोज कर्व जो कि हम सर्कल ले रहे हैं वो ड्रॉ करेंगे A एंड B. तो अभी हमें यूनियन दिखाना है, यूनियन, है ना. अभी कौन सी चैनल चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर नीचे लिखना है कि ये हमारी चैनल है A यूनियन B, है ना. सेट ऑफ टू एलिमेंट्स A यूनियन B. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और ए और बी के सारे एलिमेंट्स. दैट मीन्स ये पूरा एरिया आपका कवर होगा. ए और बी का जितना भी है वो सब आपको ले लेना है और कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है. क्लियर? तो दिस इज वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी. नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन, है ना. ये जो हमने ऑपरेशन स्टडी किया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्जेब्रिक ऑपरेशन भी होते हैं, उसमें भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करते थे.
है ना, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सब था। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम बोलेंगे लॉ। सो फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ। सो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर था कि 3+2 करेंगे या फिर 2+3 करेंगे, आंसर सेम आएगा। तो जैसे यूनियन भी है कि हम सपोज ए यूनियन बी करें, है ना, जो ऑपरेटर होता है उसके आगे पीछे जो होता है उसको हम उलट सुलट कर देंगे ना, उल्टा फुल्टा कर देंगे। उल्टा फुल्टा मतलब बी यूनियन ए करेंगे, तो ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, आपका वेन डायग्राम सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। तो दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर द यूनियन ऑपरेशन। डन। ए यूनियन बी दैट विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरा था हमारा एसोसिएटिव लॉ, नाम तो सुना होगा, एसोसिएटिव लॉ। तो उसके लिए अंदर ग्रुपिंग कंसिडर करते थे। इफ यू आर टेकिंग ए यूनियन बी and then take its union with C, that will be same as A union with B union C. Third one, third one is identity law. Identity law. जैसे नाम वैसे गुण, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सेम। सेम मतलब if you are taking the union of set U with one null set, so we are getting the same set which is A. That is our identity law, है ना। Union of set A with null set will give the same set. That is our identity law. उसके बाद है एडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या हो गया? सो यूनियन ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ, सेट ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो विल गेट द सेम सेट ए, इसको हम बोलेंगे एडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर? सो दीज आर द फोर लॉज फॉर द यूनियन ऑपरेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर, है ना। ये सब लॉज हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट यूनियन ऑपरेशन में? स्टूडेंट्स बोलो। Second operation is intersection of sets. First we have discussed union of set. Now we'll discuss intersection of sets, है ना। इंटरसेक्शन करना है तो अभी वो मैं टूटी फूटी एट डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना। सो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सो लेट ए एंड बी are two sets, A and B are two sets, then intersection of set A and set B is the set of elements which are common to both set A and set B, है ना। what is intersection? Intersection of two sets A and B is the set of elements which are common to set A and set B. common मतलब set A में भी होना चाहिए and set B में भी होना चाहिए। so let example, set A is 1 2 3 4 and elements of set B are 3 4 6 8. so intersection of two sets A and B is represented by A intersection B. जो यूनियन के लिए यू करते थे ना उसको आपको उल्टा कर देना है। so it's a intersection. so what is intersection? set of elements which are common to both means, हाँ यस, दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में ये 3 और 4 है। so it's 3 and 4. so element 3 and 4 are the elements which are common to set A as well as set B. so that will give you
इंटरसेक्शन। क्लियर? और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम यूनियन पे लिख देते हैं। सो इफ यू डिफाइन ए यूनियन बी, है ना, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, राइटिंग कॉमन एलिमेंट्स वन, कॉमन एलिमेंट एक बार लिखना है, तो 1 2 3 4, अगेन 3 4 आ गया, तो रिपीट नहीं करना है, सो 6 8, so दिस इज अवर यूनियन। डन। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन के लिए हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिख रहे हैं, और यूनियन के लिए हम दोनों एलिमेंट के ऑल एलिमेंट लिख रहे हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है। नाउ मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब क्या हुआ कि ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो मीनिंग हो गया एंड का। कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए हम ए यूनियन बी को भी साथ में लिखे, तो क्या होगा, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर क्या वर्ड था, और, दैट मीन्स ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों में होना चाहिए, तो वो था हमारा यूनियन। Clear? So this is the basic difference between intersection and union. In intersection of two sets, you have to consider the common elements, while in case of union, you have to consider the elements which is either in A or in B. Done? उसके बाद Venn diagram. So Venn diagram, this is our U. In our Venn diagram, we are representing the common area, no? The common elements. So this is the area which is common between set A and set B. So this is our A intersection B. This is common area. So this is our intersection A intersection B. Done? और उसके बाद हमें इंटरसेक्शन का एक स्पेशल केस भी स्टडी करना है ना? दैट स्पेशल केस ऑफ इंटरसेक्शन इज डिसजॉइंट सेट. So disjoint set is the special case of intersection. So let us now consider one example. Suppose we are given set A. The elements of set A are 1 2 3 4, है ना? And one set B is there. The elements of set B are 6 8 and 10. Clear, students? We are given two sets. Now tell me, what is intersection of this A intersection B? What is the intersection of A and B? कौन से एलिमेंट आएंगे? No element is common between set A and set B, है ना? So it's null set. Very good, null set. So intersection of two set is null. So no common element is there. So these two sets are known as set A and set B are called, कौन से सेट है? डिसजॉइंट सेट. डेफिनेशन याद रहेगी डिसजॉइंट सेट की. इफ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट, if two sets have no common elements, then given two sets are called disjoint sets. Clear? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो एलिमेंट वो सेट को हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे. अगर सपोज इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट U, और ऐसे हम दो सर्कल बनाएंगे, और दो सर्कल के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों अलग अलग रहेंगे, है ना? सोशल डिस्टेंसिंग आएगा. क्या आएगा? सोशल डिस्टेंसिंग डिसजॉइंट सेट में. तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स. हियर A इंटरसेक्शन B is phi. Clear? Students, चलो प्रॉपर्टी देखते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जो भी यूनियन में स्टडी की थी वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी. सो फर्स्ट लॉ था कॉम्यूटेटिव लॉ. सो व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ? A intersection B will be same as
B intersection A. It is our commutative law. Second law, that is our associative law. So if you are taking A intersection B intersection C, that will be same as A intersection B with B intersection C. ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेके सी के साथ इंटरसेक्शन ले, या फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेके ए के साथ इंटरसेक्शन ले, दोनों का आंसर हमें सेम मिलेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन विथ नल सेट। सो ए और नल सेट एम्प्टी सेट के बीच का जो कॉमन होगा, क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सो ए इंटरसेक्शन विथ 5, दैट विल बी 5। फोर्थ वन, ए का इंटरसेक्शन यू के साथ। सो ए इज द सबसेट ऑफ यू, उसका यू के साथ सब इंटरसेक्शन लेंगे, सो विल गेट ए। एंड द फिफ्थ लो, अगर ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले तो वो में मिलेगा ए। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। एंड द लास्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें कोई डाउट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। So here you have to consider union operation as well as intersection operation. So for distributive law, first you have to consider distribution of union over intersection. कैसे रीड करते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। सो दैट विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन, इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। क्या नाम है प्रॉपर्टी का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन और intersection. Distribution of union over intersection. Clear? And the second one is distribution of intersection over union. So it's a intersection, B union C. तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन के साथ। so that will be equal to A intersection B यूनियन A intersection C. तो इसको हम क्या रीड करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखो इंटरसेक्शन बी के साथ भी आ गया और ये इंटरसेक्शन सी के साथ भी आ गया, तो इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर intersection, and distribution of intersection over union. क्लियर? ये दो प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट? एक और बार देखो,